Hello everyone, today we will study the graphical method and the calculus method for deriving our equations of motion. So there are total 3 equations of motion that we will derive today. So as we know, it's our last lecture for this chapter, that is part 4, and the chapter name is motion in a straight line, right? So you will see here, it's our chapter number 1, the motion in a straight line in second unit. Now it's a 4th part and it's a last part of this chapter, right? Okay, so as you know, in the 3rd lecture we have left at the numerical that you have to try by yourself. So today I will give you the solution of this numerical. If the distance traveled by a body in a time t is given by x is equal to at plus bt square, that means displacement is given to you. You have to find instantaneous acceleration of the body and the instantaneous velocity. So add one part more, the instantaneous velocity also here. Okay, so you have to find the both things. As you know, in last lecture I have told you that when the displacement is given to you and you have to find the instantaneous velocity and the acceleration, you will use the derivative method, right? So as you know, the formula for instantaneous velocity is dx by dt, right? So d by dt is as it is. Just put down the value of x that is given in the numerical, that is at plus bt square. Now as you know, in the case of uniform acceleration, the a is constant, so I will take it outside from the derivative, right? So d t by dt is 1, as you know, plus b is constant, I will take out t square, so derivative t square. Now b is common, 2 power 2 आगे आ जाएगी 2, then power will decrease and the base का derivative. So you will get a plus b into 2t, that is the velocity. Now you will know instantaneous अगर velocity आ गई तो आप instantaneous acceleration भी निकाल सकते हो, right? How? A is equal to dv by dt, same method, d by dt. Now you differentiate v, not x, right? Because the formula is dv by dt. So just put down the value v that we have to, that we will yes, in first part a plus 2bt, right? So a is constant here, so derivative of constant is 0, that's why 0 come here. Now 2 is common, b is common, take the common, 2b common, right? So left is dt by dt, that is 1, so 2b is your answer. So what you will get here, the instantaneous velocity is a plus 2bt and the instantaneous acceleration is a is equal to 2b, right? So now you have to solve all the numericals of this type based on the instantaneous acceleration and the instantaneously velocity, right? Okay, let's move to our next topic, that is most important topic. As I told you in the 3rd lecture, that graphical method is very important, and in exams every time from three equation of motion one is asked, right? So formula for uniformly accelerated motion. So we will derive these 3 equations of motion by 2 methods, one by graphical one and other by calculus method, right? But this one is very important. So one more thing before deriving these equations, that we have to apply these equations only for uniform acceleration. As you know, in case of uniformly accelerated motion, the change in velocity is constant, right? If change in velocity is constant, then acceleration is not changing. Always if change is, because acceleration is equal to change in velocity upon change in time. अगर change in velocity constant है, then acceleration will be also constant, right? So that means uniform acceleration, constant acceleration, or you can say uniform acceleration. So this equation of motion is applicable only in 1D, first thing only in straight line, second thing only for the uniform acceleration, right? So these 2 things are important before deriving. Now I tell you the basic notation that we use in deriving these equations. First is u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration, t is the total time taken by a body to cover a distance. What distance? That is s, right? So now for first equation I have told you that these are the 3 equations of motion. First is v is equal to u plus at, the relation between v and t. Second one is relation between displacement time, that is ut plus half at square. Third one is relation between displacement and the v, that means final velocity, v square minus u square is equal to 2as. So one by one we will derive these 3 equations of motion by graphical method, right? So our first equation of motion is v is equal to u plus at, right? So
as you know, in the third lecture I have told you that graph for the uniformly accelerated motion is like this, right? Starting from here, not from 0, right? As you know. So this one is the initial velocity that a body cover. So it is not a constant because change in velocity is constant, not velocity is constant. So you will get straight line but slanting one, right? So having some slope. Now you will see at time t equal to 0, the body cover initial velocity u, right? At another time t, the body will cover velocity with velocity v, right? So what is difference between them? टोटल AD कितना होगा? अगर यहाँ से O से V तक का, दैट मीन्स D तक का, ये D पॉइंट है, ये A पॉइंट है, दिस इज C, दिस इज B एंड दिस इज A, राइट? सो नाउ अगर आपको AD फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करोगे आप? टोटल डिस्टेंस बॉडी ने 0 से लेके D तक कितना कवर किया? V, और 0 से O से, यू कैन से ओरिजिन O से लेके A तक U है, तो हम टोटल में से इतना माइनस कर दे तो हम AD फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स V माइनस U. सो यू विल गेट AD, V माइनस U, राइट? सिमिलरली 0 से E पॉइंट तक जा रहे हैं, दैट मीन्स बॉडी ने कितना टाइम कवर किया? T तक, 0 से T, दैट मीन्स T माइनस 0 इज T. सो डिस्टेंस AC कितना हुआ? T, राइट? जितना AD होगा उतना ही BC, कितना? V माइनस U, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस है, राइट? अगर ये V माइनस U है तो BC भी V माइनस U ही होगा, राइट? सिमिलरली अगर OAU है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो CE भी U होगा, राइट? सो यू विल सी हियर, तो ये कितना होगा? V माइनस U, right? And this CE distance कितना होगा? U, right? Okay. Now you will see at time t equal to 0, मैंने माना कि initial velocity मेरी U है. At time t, some time t, the velocity will become V from U, right? Final velocity is V. Now you know velocity time कहाँ अगर हम स्लोप निकालना चाहे वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप क्या होता है? वाई एक्सिस से कितना चेंज हो रहा है? डिवाइड बाय एक्स एक्सिस में. तो वाई एक्सिस में क्या चेंज हो रहा है? v, एक्स एक्सिस में t. सो स्लोप क्या होता है? v अपॉन t, y अपॉन x. सो v अपॉन t क्या होता है? एक्सेलरेशन. इसीलिए जो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन, राइट? सो फर्स्ट थिंग while deriving, the first step is this one. You have to understand this. Slope of velocity time graph gives you acceleration, right? So let's move in derivation. These are very easy derivation, you just understand on one concept only. Now as you know, slope of the velocity time graph gives us acceleration, and slope वैसे क्या होता है? डेफिनेशन कितना y एक्सिस में राइज हो रहा है या चेंज हो रहा है, कितना by x एक्सिस में हो रहा है. तो आप देखोगे इस ग्राफ के अंदर कितना चेंज हो रहा है? A से लेके B, ये ग्राफ चेंज हो रहा है, राइट? इसके अंदर y का कितना चेंज है? y आप देखोगे, सिर्फ हमें ये ट्रायंगल लेनी है A B C, कितना चेंज हो रहा है इस ग्राफ के अंदर, राइट? इस लाइन के अंदर. तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है? ये कितनी है? V माइनस U, राइट? और x एक्सिस मतलब टाइम में कितना चेंज हो रहा है? T माइनस 0. तो V माइनस U डिवाइड बाई T माइनस 0 इज द चेंज, राइट? सो दैट यू विल yes, that will give you the slope. So V minus U divide by T, and slope of the velocity time graph, as you know, gives us acceleration. So I will put the value A. Just cross multiply it, you will get AT is equal to V minus U, right? So first equation of motion will be derived, that is V is equal to U plus AT. Now let's move to our second equation of motion, that is displacement area under velocity time graph. आपको पता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपको कभी स्लोप निकालनी है तो आपको डिवाइड करना होता है, और जब एरिया निकालना होता है आपको मल्टीप्लाई करना होता है, राइट? एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर्स. सो स्लोप तो हमें देगी डिस्प्लेसमेंट, बट एरिया क्या देगा? एरिया क्या होता है? मल्टीप्लाई करना दो क्वांटिटीज का जो ग्राफ में है. कौन कौन सी दो क्वांटिटीज ग्राफ में है? वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देता है? डिस्टेंस हमें, क्योंकि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप वेलोसिटी इनटू टाइम करोगे, राइट? So you will see when you multiply velocity into time, then you will get the displacement, right? So slope of the velocity time graph gives you acceleration, but the area under velocity time graph gives us the displacement. Now the second thing is, आपको किसके अंदर एरिया निकालना है? AB लाइन के अंदर. तो AB लाइन के अंदर कौन सा एरिया कवर होगा, राइट? सो आप देखोगे ये सारा एरिया कवर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एरिया, राइट? तो ये सारा एरिया आपके लिए कवर होगा. तो आप देखोगे
अगर ये सारा एरिया कवर अप हो रहा है तो आपको इसके अंदर पूरा एरिया निकालना होगा। तो ये AOEB क्या बन रही है, एक ट्रेपीजियम। तो आपको एक ट्रेपीजियम का एरिया निकालना होगा जो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, क्योंकि एरिया वैसे आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, राइट। तो आप डिस्प्लेसमेंट को किससे इक्वल करोगे, एरिया के इक्वल। तो आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा कि इस ग्राफ के अंदर कितना एरिया आ रहा है, दैट इज द ट्रेपीजियम एरिया। तो ट्रेपीजियम एरिया को हम कैसे निकाल पाएंगे, आपको दिख रहा हो कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस पूरे एरिया को, राइट। सो कैसे, फर्स्ट वन, अगर मैं अगर मैं ABC एक ट्रायंगल है, इसको मैं ये फर्स्ट मान लूं और ये सेकंड पोर्शन मेरी रेक्टेंगल होगी, राइट। सो दिस वन इज सेकंड। नाउ यू विल सी कि ये पूरा ट्रेपीजियम को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो ट्रायंगल होगी ABC प्लस एक रेक्टेंगल होगी ACEO। तो अगर आपने एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया और एक इस रेक्टेंगल का, दोनों को ऐड कर दोगे आपको ये पूरा एरिया मिल जाएगा जो कि ट्रेपीजियम का एरिया था इस लाइन के अंदर, राइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल एरिया, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हाफ बेस कितना है, CT हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, BC, दैट इज V माइनस U। सो दैट्स वाई आई पुट हियर दैट डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना था T, परपेंडिकुलर कितना था V माइनस U। तो सेकंड टर्म तो ऐसे आई, राइट। नाउ वी विल सी दैट हाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल कम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने लिखा था UT आएगा, कैसे आएगा ये देखो, ACEO ये रेक्टेंगल है, राइट। तो लेंथ क्या है इसकी, O से लेके E तक, जितनी AC होगी उतनी OE होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है T। अब ब्रेड्थ कितनी है, U होगी, क्योंकि O से लेके हमें सिर्फ यहाँ तक जाना है C पॉइंट तक। तो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो U हो गया, राइट। तो U इंटू T करोगे, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है फॉर्मूला रेक्टेंगल के एरिया का। सो U इंटू T, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो नाउ यू विल गेट UT प्लस हाफ ऑन सॉल्विंग दिस, सॉरी, yes, UT plus half V minus U. Just now at this step you have to put the value of V minus U from first equation of motion. What is first equation of motion? V is equal to U plus AT. आपको यहाँ से V minus U की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है, that is AT, right? So just now cross multiply, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे T इंटू AT, दैट इज AT स्क्वायर, यहाँ पे UT। सो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विल ड्राइव, दैट इज UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, राइट। सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज, आपको इसमें भी वही देखना है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देखता है, बस यहाँ पे आपको सीधा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाना, देन यू विल गेट दिस। आप बोलोगे कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, सी आपको रिलेशन निकालना है कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर में। तो आपको देखना पड़ेगा कि मैं कौन से कंपोनेंट्स लूँ, कौन सा एरिया लगाऊं या कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि आपके पास वही पैरामीटर्स आ जाए, हमारा रिलेशन आ जाए, राइट। सो नाउ यू विल अप्लाई डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। आई विल टेल यू हाउ यू विल टेक इट फ्रॉम ग्राफ, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं, राइट। तो ग्राफ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। नाउ यू विल सी हियर फ्रॉम द ग्राफ द OA एंड द B आर द पैरेलल लाइंस, राइट। तो आपको ये ट्रेपीजियम पूरी लेनी है, अब ABEO, तो ये पूरी ट्रेपीजियम है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, AO और BE, क्योंकि AB और OE तो पैरेलल साइड्स नहीं लग रही, ठीक है, सिर्फ ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो OA कितना है U, BE कितना है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, दैट इज टोटल V, राइट। तो VU, ये दोनों V प्लस U हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था सम ऑफ पैरेलल साइड्स है, राइट। तो V प्लस U ये तो हो गया, इनटू क्या था, हाइट। परपेंडिकुलर लेते हैं, ये होती है परपेंडिकुलर ट्रेपीजियम का, राइट। तो आप परपेंडिकुलर लेते हो, दैट इज T। तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू पुट हुई है, यस, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो यहाँ पे AC मतलब T माइनस 0 जो परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स V प्लस U। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इज इक्वल टू U प्लस AT, T की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, V माइनस U बाई A आ जाएगा, T की जगह आप पुट करोगे। नाउ डिनोमिनेटर में 2 इंटू A मैंने बाहर ले लिया, बचा क्या, V प्लस U एंड V माइनस U। एज यू सी दिस इज like the A plus B and A minus B. Apply the formula of A plus B and A minus B, that is A square minus B square. So it will become V square minus U square. So 2A multiply with S, that you will get 2AS is equal to V square minus U square, right? So it is your third equation of motion, that is V square minus U square is equal to 2AS. Now
यस, नाउ अप टू दैट द ग्राफिकल मेथड इज ओवर. हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर लिया बाय ग्राफिकल. एक ग्राफ से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया, राइट. नाउ वी डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड. व्हाट इज कैलकुलस मेथड? हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंसेप्ट्स को यूज करके यही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके, लिमिट्स अप्लाई करके, राइट. सो नाउ यू विल सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो हमें डिराइव करनी है. तो हम इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का. एज यू नो द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दैट इज a इज इक्वल टू dv बाई dt. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट विल बिकम a dt इज इक्वल टू dv. मार्क इट एज फर्स्ट इक्वेशन. नाउ एज्यूम द लिमिट्स कि इनिशियल टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी u थी, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v फाइनल v हो गई. नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट. हमें पता है यहाँ पे जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो किसको कर रहे हो, v को. तो लिमिट्स u v की लेंगे, वेलोसिटी की लेंगे. वेलोसिटी कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी हुई, u से v तक. इसलिए मैंने लिख दिया इनिशियल u फाइनल v इज इक्वल टू a. कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्योंकि हम डिराइव कर रहे हैं, तो a को बाहर ले लोगे आप. अब यहाँ पे t की लिमिट्स पुट करोगे. जब वेलोसिटी इनिशियल टाइम t 0 था तो वेलोसिटी u थी, जब टाइम t था वेलोसिटी v. तो लिमिट्स क्या हो जाएंगी 0 टू t. तो आप जस्ट इंटीग्रेशन करोगे फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू a कांस्टेंट एज इट इज फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम दैट इज t माइनस 0. सो इट विल बिकम v इज माइनस u इज इक्वल टू a t. नाउ सो वी विल रीच टू आवर result that is v is equal to u plus at. Similarly, you have to derive the second equation of motion by using the concept of instantaneous velocity. In first case, you will apply the concept of instantaneous acceleration. In second case, you will apply the concept of instantaneous velocity. That is v is equal to dx by dt, where x is displacement, right? So now जिस क्रॉस मल्टीप्लाई dx उधर चला जाएगा, यहाँ से dx v को v dt को क्रॉस मल्टीप्लाई और इट विल बिकम dx इज इक्वल टू v dt, राइट. dx is equal to v dt. mark it as equal second equation. now you will see v is equal to u plus at होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से. यहाँ से v की वैल्यू निकालो, यहाँ पे पुट कर दो. यहाँ पे जब पुट करोगे dx हो एज इट इज इक्वल टू v की जगह u plus at इंटू dt. तो इसको थर्ड इक्वेशन नेम दे दो, राइट. नाउ फिर से लिमिट्स एज्यूम करो, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. लिमिट्स लो, एज्यूम करो, इंटीग्रेशन करो, you will get your result, right. Just modifications from each other, from equations from previous equations. So initial time t equal to 0 और final time t, initial displacement x naught, final x. क्योंकि अब यहाँ पे लिमिट्स मैंने अब डिस्प्लेसमेंट टाइम की क्यों ली, क्योंकि मेरी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट और टाइम में है. जैसी इक्वेशन होगी उसी के हम लिमिट्स एज्यूम करेंगे. नाउ इंटीग्रेट दिस थर्ड इक्वेशन. x नोट से x डिस्प्लेसमेंट की, 0 से t टाइम की. dx करोगे तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम दैट विल बिकम x माइनस x नोट. u बाहर निकालो कांस्टेंट, 0 टू t का इंटीग्रेशन, a कांस्टेंट बाहर निकालो t dt का इंटीग्रेशन. नाउ u बाहर, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम t माइनस 0 प्लस a. इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, पावर 1 है, पावर इंक्रीज हो जाएगी बाय 2 क्योंकि 1 प्लस 1 करते हैं, डिवाइड बाय 2, राइट. इफ एनीवन फाउंड एनी डिफिकल्टी व्हाइल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, प्लीज लेट मी नो. I will provide you notes for the differentiability and the integration, right. But I hope you will know about at this stage that how to integrate and how to differentiate, right. But someone if find any difficulty regarding integration or differentiation, please let me know in comment section, right, or you can contact me. So a, then integration t square by 2 from 0 to t. Now the final minus initial displacement that is equal to ut plus half at square. So that we will reach the, मैंने x minus x नोट को s पुट कर सकती हूँ क्योंकि हम सेकेंड प्रीवियस लेक्चर में भी हम ये करते आ रहे हैं, राइट. सो आप क्या करते हैं, x माइनस x नोट को मैं s पुट कर सकती हूँ, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या किया था, हमने यूज किया था कंसेप्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का. सेकंड में क्या किया, कंसेप्ट यूज किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, राइट. थर्ड में हम क्या करेंगे, दोनों का यूज करेंगे, एक्सेलरेशन भी यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी भी. तो एक्सेलरेशन क्या होती है, dy बाई dt. तो अगर मैं dv बाई dt को लिखना चाहूँ dv बाई dx इंटू dx बाई dt, नो इशू. वाई, क्योंकि dx तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा वही dv बाई dt. तो मैं इसको मॉडिफाई करना चाह रही हूँ, dv बाई dx
लिख सकती हूँ इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है तो कट के हमारे पास यही आ जाना है, राइट। तो आप डी एक्स बाई डी टी को v लिख सकते हो क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। सो एक्सप्रेशन विल बिकम डी वी बाई डी एक्स इंटू वेलोसिटी, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, वी डी वी ये एज इट इज रह जाएगा और ये डी एक्स उधर चला जाएगा। सो यू विल गेट वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ द इनिशियल, क्योंकि अब देखो हमारी इक्वेशन किस में, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, सो हम लिमिट्स भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की लेंगे, राइट। सो हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होकर एक्स नोट से और पहुंच रही है एक्स तक, और वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है यू से एंड रीच टू वी। इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट, अप्लाई द लिमिट्स एज वी डू इन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फर्स्ट u v v d v, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी v d v, u से v लिमिट डिस्प्लेसमेंट की x नोट टू x, a की लिमिट्स नहीं लेंगे क्योंकि a कांस्टेंट है, हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में सब डिराइव कर रहे हैं, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है और किसी चीज के लिए नहीं, राइट। सो अप्लाई द लिमिट्स, इंटीग्रेशन पावर 1 है तो ऐड हो जाएगी 1 + 1, नीचे भी 1 + 1, सो यू विल गेट v स्क्वायर बाई 2। अप्लाई द लिमिट्स u टू v इक्वल टू a बाहर एज इट इज dx इंटीग्रेशन x नोट टू x, अप्लाई द लिमिट्स x फाइनल माइनस इनिशियल x माइनस x नोट, उसको हम s लिख सकते हैं। सो इट विल बिकम as दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। 2 को उधर ले जाओ, सो इक्वेशन विल बिकम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, हेंस प्रूव्ड। सो अप टू नाउ we will derive the 3 equation of motion, one by the calculus method and other by the graphical one, right? So graphical one is more important, as I told you again and again. On these 3 equation of motion any numerical can be asked, so you will try maximum question try on this equation of motion, right? Okay, we will do the numericals in this lecture also, right? Okay, next is सी अप टू नाउ हमने अभी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर लिया, राइट। बट अगर हमें इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करना हो किस चीज में, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन की मूव करने के बजाय या तो नीचे गिर रही हो मतलब फॉल डाउन हो रही हो, या ऊपर हम फेंक रहे हो मतलब थ्रो अप कर रहे हो, तो तब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे चेंज होंगी। तो आपको इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने की जरूरत नहीं है उस टाइम में, सिर्फ आपको जो यहाँ पे हर इक्वेशन में जो ए है दैट मीन्स एक्सेलरेशन, उसको जी से रिप्लेस कर देना है, राइट। तो मैंने वही लिखा है कि अगर आपको काइनेमेटिक इक्वेशन को ऑब्टेन ग्रेविटी के अंडर ऑब्टेन करना हो तो एक्सेलरेशन जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होती है उसको हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करना है। सो how our equations become v is equal to u plus at था, वहाँ पे g आ गया, gt हो गया, जहाँ पे ut plus हाफ at स्क्वायर था वहाँ पे हाफ gt स्क्वायर हो गया, जहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as था वहाँ पे 2gs हो गया। वेयर एक्स ड्यू टू ग्रेविटी इज g, तो उसकी वैल्यू या तो आप 9.8 लो, अगर आपको न्यूमेरिकल में गिवन है तो आप वो लोगे, अदरवाइज आप 10 भी ले सकते हो फॉर इजी कैलकुलेशंस, राइट। नाउ वन मोर थिंग, जब भी बॉडी नीचे गिर रही है क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होती है, राइट। तो अगर बॉडी फॉल डाउन हो रही है तो आप प्लस जी ही लोगे, यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अगर बॉडी थ्रू अप हो रही है तो आप जी की जगह माइनस कर दोगे, राइट। तो या आप वैल्यू में जी की वैल्यू 9.8 नहीं, उस टाइम पे माइनस 9.8 लोगे, राइट। सो दीज आर द 2 थिंग्स। नाउ नेक्स्ट थिंग टू रिमेम्बर फॉर न्यूमेरिकल केसेस, अगर आपको फॉल डाउन है, अगर आप कोई बॉडी फेंकते हो तो आपको कुछ वेलोसिटी देनी पड़ती है, नहीं आप सीधा बस हाथ से पकड़ते हो और फेंक देते हो। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है फ्री फॉल के केस में, कोई आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं देनी पड़ती नीचे जब गिरना होता है किसी चीज को, राइट। अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा उसको फेंकने के लिए, बट ऊपर जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है क्योंकि वो स्टॉप होनी होती है, रुकनी होती है। सो v इक्वल टू 0 फाइनल वेलोसिटी। तो फ्री फॉल के मतलब डाउन साइड केस में u 0 होता है और थ्रू अप केस में v 0 होता है, राइट। और ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर बॉडी नीचे गिर रही है तो आप प्लस जी लोगे, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी लोगे, राइट। नाउ लेट्स डू सम न्यूमेरिकल, देन यू विल मोर क्लियर विद साइन कन्वेंशंस। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्टोन को ऊपर फेंका गया कितनी वेलोसिटी से, 14 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फाइंड मैक्सिमम हाइट, आपको हाइट बतानी है कितनी होगी एंड द टाइम ऑफ एसेंट। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट एंड व्हाट इज द सी। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉडी को फेंक रही हूँ, राइट, ऊपर फेंक रही हूँ, राइट, ऐसे, तो वो नीचे भी आएगी, राइट। तो दैट मीन्स पैराबोलिक पाथ कवर करेगी, तो ये होगी मैक्सिमम हाइट जहाँ पे ऊपर यहाँ पे। सो दिस वन इज द मैक्सिमम हाइट पोजिशन, ये वाला दिस वन इज द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, जितना बॉडी को स्टार्टिंग पॉइंट से
मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं अप टाइम, मतलब ऊपर जाने को टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ जब पहुंच गया तो नीचे के आने को टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और ये दोनों इक्वल होते हैं, जितना टाइम में ऊपर जाएगा उतने टाइम में वो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस हमने नहीं किया, राइट। तो नॉर्मली दोनों इक्वल होते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है, राइट। नाउ हमें उन्होंने सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट पूछा है, तो हमें सिर्फ अप टाइम पूछा, मतलब जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं फर्स्ट हाफ के लिए पूछा है, राइट। सो दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट इज आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी, तो आपको ये हाइट निकालनी है, ये वाली, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए दैट मीन्स आपको ये वाली हाइट निकालनी है, राइट। सो नाउ आई थिंक यू विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल So let's move to our solution. A stone is object thrown है, that means thrown है, तो मैंने क्या बताया था आपको, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी लेकिन फाइनल 0 हो जाएगी, दैट मीन्स v 0 हो जाएगा। और u आपको दे रखी है 14, u 14 है, v 0 है, g दे रखी है, बट थ्रोन ऊपर है मतलब ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं। तो तीनों चीजें आपको पता चल गई। अब कैसे करोगे, आपको पता है तीन ही चीजें दी हुई हैं, कौन सी फिक्शन ऑफ मोशन यूज करो कि आपके पास हाइट आ जाए। हाइट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, कितना उसने डिस्टेंस मूव किया ऊपर जाते वक्त, राइट। तो ये डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने के टाइम को, जहाँ वो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको चूज करनी होगी। सी ये आपको खुद सोचना है कि मेरे पास कौन से पैरामीटर और मैं कौन सी इक्वेशन ऐसे यूज करूँ कि उसमें तीनों पैरामीटर जो हो वो मुझे गिवन हो और एक मुझे फाइंड आउट करना हो। तो मेरे पास जी है, मेरे पास v है, मेरे पास u है, तो मेरे को थर्ड कन्वीनियंट लग रही है क्योंकि v भी है, u भी है, g भी और s मुझे निकालना है। सो v की वैल्यू 0 क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 0 होती है थ्रोन अप केस में। u 14 गिवन है, 2g माइनस लोगे क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं, s हमें फाइंड आउट करना है। व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल यू विल गेट मैक्सिमम हाइट 10 मीटर, दैट मीन्स ऊपर जाना यहाँ तक कितना हाइट हो जाएगी, 10 मीटर पूरी हाइट है, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा था टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, ऊपर जाने का टाइम, दैट मीन्स हाफ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो उसका अब देखो v पता है, u पता है, g पता है, टाइम निकालना, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कन्वीनियंट लग रही है। सो यू हैव टू अप्लाई v इज इक्वल टू यू प्लस हाफ, सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, a की जगह g नेगेटिव लेंगे, सिमिलरली केस थ्रोन अप केस है। सो यू विल सॉल्व, t विल गेट, राइट। सो सिमिलरली लाइक the questions you have to solve based on the kinematic equation of motion, right? Okay, let's move to our next numerical. This is important numerical, mostly एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, बट आपको भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। सो वी विल ट्राई दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो। सो आपको एक फिगर दे रखी है, आपको उन्होंने पूछा है कि आपको ये फिगर है उसके हर एक पाथ के अंदर एक्सेलेरेशन निकालनी, मतलब ओ से गई तो कितनी एक्सेलेरेशन होगी, ए से बी गई कितनी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, तो हर एक पार्ट के अंदर कितनी एक्सेलेरेशन बॉडी कवर करेगी आपको बताना है। और सेकेंड पार्ट में आपको ये बताना है कि इस ग्राफ के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये ग्राफ आपको क्या इन्फो दे रहा है, राइट। सो फिगर शो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ये है। फर्स्ट में आपको एक्सेलेरेशन निकालनी है ईच फेज ऑफ मोशन के लिए, और सेकंड बताना है कि हर एक फेज ऑफ मोशन हमें क्या इन्फो दे रहा है, राइट। सो हाउ ऑब्जेक्ट मूव्स ड्यूरिंग लास्ट टाइम सेगमेंट, तो हर एक टाइम सेगमेंट में यहाँ पे लास्ट की जगह ईच टाइम सेगमेंट कर लीजिए क्योंकि हमें ईच टाइम सेगमेंट के लॉन्ग बताना है, राइट। सो हियर कट इट and write each time. Make it correct in PDF also, each time. So now you will see, फर्स्ट आप देखोगे फॉर ए देखते हैं, देखो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो हमें पता है हमें ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ ही तो दे रखा है, तो करना क्या है बेसिकली, एक पाथ लो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी देखो, चेंज इन टाइम देखो, दोनों को डिवाइड करो, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। आप देखोगे ओ ए के लिए वेलोसिटी जितनी थी उतनी है, दैट मीन्स 0, नो चेंज इन वेलोसिटी, राइट। और टाइम कितना चेंज हुआ, 0 से 1 सेकेंड का। तो फर्स्ट के लिए क्या हो गया, change in velocity upon change in time, change in velocity 0 upon 1, that means 0, right। now come to AB path, 0 to 8 कवर हो गया। अब आओगे AB पाथ पे, AB पाथ में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल करके चेंज आता है, फाइनल कितनी है 8, इनिशियल कितनी थी 0, दैट मीन्स 8 माइनस 0 कितना हुआ 8, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गई 8। अब
ए से बी पॉइंट तक कितना टाइम वेस्ट हो, ए पॉइंट पे टाइम कितना है 1, बी पॉइंट पे टाइम कितना है 3, तो 3 - 1 2, सो 3 - 1 2, दैट मीन्स टाइम चेंज हो गया 2 सेकेंड का और वेलोसिटी चेंज 8 का, तो v/t करके एक्सेलरेशन आएगा 8/2, दैट मीन्स 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो नाउ यू विल कम टू द पाथ यस BC, राइट। सो अगर आप BC पे आओगे या तो आप सीधा BD निकाल लो, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट, राइट। सो यू विल सी, मैंने यहाँ पे वैसे आपको दे रखा है कि sorry, yes, here you will do one thing, आप BC और CD को इकट्ठे करो। वाई? क्योंकि आपको मुझे एक इन्फो देनी है कि लास्ट में आप देखोगे हर केस के लिए आपकी एक्सेशन सेम आ रही होगी, 4 आ रही होगी, राइट। तो आपको BC और CD को कोलैब करके BD इकट्ठा निकाल लो, क्योंकि वो एक ही लाइन है रिटार्डेशन की, राइट। तो अगर आप BD को निकालना चाहोगे फॉर टाइमिंग, अगर आप कट करना चाहो तो कट भी कर सकते हो दोनों पार्ट्स को, हम सीधा BD निकाल लेंगे, राइट। सो यू विल सी हियर, अगर मुझे BD निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? BD के लिए सबसे पहले हम देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी कितना है BD के लिए, 8 और हियर -12, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो स्टार्ट कहाँ से हो, यहाँ तक, खत्म कहाँ कर रहे हैं यहाँ पे, तो -12, राइट, -12 माइनस बीच में होता है चेंज में, फिर ब्रैकेट लगाओ और 8, राइट। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 8, राइट। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स -20 हो जाएगा ये तो, और इनिशियल और टाइम कितना चेंज हुआ 3 से लेके 8 तक, दैट मीन्स 8 - 3, तो ये कितना हो गया 5, दैट मीन्स -20/4 करोगे तो कितना होगा -4 ही आने वाला है। तो आप देखोगे आप किसी भी केस में कर लो, चाहे तो आप BD इकट्ठा कर लो चाहे BC ले लो, पर है ये एक लाइन, तो ये डाउन स्लोप आपको लग रहा नीचे आ रही है, दैट मीन्स ये डिक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो चाहे तो आप जैसे मैंने पहले किया BC ले लो CD ले लो, दोनों में -4 ही मिलेगा, चाहे आप BD को इकट्ठा कर लो तब भी आपको -4 मिलना है, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ही मिलने वाली है। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, तो नेगेटिव क्यों होगी, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है, डाउन स्लोप है, राइट। सो अगर आप देखो तो आप चाहे इन दोनों पार्ट्स को अलग भी कर सकते हो, मैंने कट किया था फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट, यस। सो यू विल नॉट कट इट। नाउ BC और CD के लिए आप सिमिलरली कर लोगे, राइट। नाउ DE पे आते हैं और EF देखते हैं कैसे होगा। अब DE देखो वही कांस्टेंट ही आना है, पर देख लेते हैं कैसे होगा। DE के लिए क्या करोगे, DE यहाँ तक है, टाइम कितना हो रहा है 9 to 8 चेंज हो रहा है, दैट मीन्स टाइम सेकेंड 1 का वेरी हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज कैसे होगा, D पे वेलोसिटी कितनी है -12 और E पे कितनी है 4, राइट। तो E पे 4, D पे कितनी है -12, राइट। सो 12 -4 करोगे, -12 यहाँ से इनिशियल माइनस फाइनल होता है ना, तो -4 माइनस -12 करोगे तो वो बन जाएगा +8। नाउ यू विल सी, और टाइम सेकेंड 1, नाउ यू विल सी एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी आई 8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। सो नाउ नेक्स्ट इज EF, तो आप देख रहे हो एक्सेलरेशन कैसे वेरी करी है, क्योंकि डाउन स्लोप में थी 8 -4, और ये मैंने बताया था आपको कांस्टेंट ही आने वाली, चाहे आप BD कर लो चाहे आप CD कर लो, क्योंकि डाउन स्लोप है, स्लोप सेम होगी उस लाइन की, चाहे आप इकट्ठा करो चाहे आप अलग अलग। नाउ सिमिलरली यू हैव टू डू ऑन सेल्फ A के लिए, दैट इज 0। सो व्हाट वी कंक्लूड क्या करते हैं ग्राफ से हम, सी ये सेकेंड पार्ट फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज इसमें मुझे कुछ मिस्टेक भी लग रही है, आप इस पार्ट में ईच भी नहीं करोगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, लास्ट पे कट करो। डिस्क्राइब हाउ द ऑब्जेक्ट मूव्स ड्यूरिंग द लास्ट सेगमेंट, तो लास्ट सेगमेंट ग्राफ का क्या होगा देखते हैं हम, ग्राफ का लास्ट सेगमेंट दैट इज EF, तो EF में एक्सेलरेशन कितनी हो रही है 0। अब लास्ट सेगमेंट ग्राफ क्या है 10 to 12, सो लेट्स से 10 to 12 में भी ऑब्वियसली वेलोसिटी नो चेंज, तो अब सेकेंड पार्ट में लास्ट सेगमेंट का कोई मतलब नहीं बन रहा है कि लास्ट सेगमेंट क्या बोल रहे हैं, राइट। सो फॉर अ टाइम बीइंग यू विल स्किप दिस पार्ट, सो यू हैव टू डू ओनली फर्स्ट पार्ट एज वी विल डू ऑल द पार्ट्स के अंदर आपको एक्सप्रेशन निकालनी, राइट। तो अगर आपसे पूछे ग्राफ से क्या इन्फो मिल रही है, तो आप बताओगे जब ऊपर जा रहा है तो आपको अकॉर्डिंग टू डाउन स्लोप और अप स्लोप आपको वेलोसिटीज मिल रही है, राइट। तो आपको ये जो सेकंड पार्ट का जो मैंने आंसर दिया वो भी आपको स्किप ही करना है, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट नहीं मिल रही है हर पार्ट के लिए। सो यू विल सी हियर
Yes. So you will cancel this part, second part you will, yes, right? So there is one part only for this numerical. Now let's move to a problem. Yes. So our problem is, see, this is assignment for you. मैंने इस टाइप के सिमिलरली क्वेश्चंस आपको करवा दिए, आपको खुद करने हैं आप ये दोनों क्वेश्चंस. तो फर्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बेस्ड है, और सेकंड जैसा हमने अभी ग्राफ के बेस क्वेश्चन किया, और ये आपको आंसर्स दे रखे, आप आंसर मैच कर सकते हैं. अगर आपको कोई इशू है, सोल्व नहीं हो रहा, आपके आंसर नहीं मैच कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और यू कैन कंटेक्ट मी, राइट? And you can ask me in the group also. So velocity time graph of an object in linear motion, ये ग्राफ बेस्ड है. आपको v और t का ग्राफ है. मैंने जो क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने एक्सेलरेशन के बेस पे करवाया, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, राइट? तो आप v इंटू टी करोगे और आपको डिस्प्लेसमेंट मिलती जाएगी हर एक टाइम के अंदर, बट चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम निकालते जाना, आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मिलती जाएगी, राइट? ओके, नाउ ओके गाइज, this is done for our today's lecture, right? So our motion in a straight line completed. Kinematics का जो first chapter था that is completed. Now next week we will move to our second chapter, that is vector analysis. आपको vectors के बारे में info देंगे हम, right? Okay, please understand this lecture carefully. First chapter में कोई भी confusion है, any doubt, any query, please let me know, right? You can follow me on Instagram, as you know. I will give in the link in the description of this video. You can click on that link and follow me on that page, Instagram page. You can ask me doubts there. You can get PDF also, right? Okay. And guys, please, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल बाय जिंकल ग्रोवर, राइट? एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the advantage of these video lectures at this situation. And also please like, comment, don't forget to subscribe and hit the bell icon after subscribing so that you will get notifications for upcoming lecture and you will not miss any lecture, right? Okay, again, physics tutorial by Jingle Grover. Don't forget to subscribe. Thank you so much for watching this lecture. Take care. Goodbye.